Hello students, I am welcoming you again all at Shiva Classes and Physics Zone. I am Nilay Jani, your physics teacher. Now, today we are starting with the revision of the previous lecture of 11th Physics. First lecture was based on physical world, or at that time in the first lecture we have discussed about humans are very intelligent creatures, so that is why they predict something, they observe something, they experiment, get some conclusion. After that, they recall that observation and they decide the law of physics, which already exists in nature. यानी कि जो कोई भी लॉज बनाए जाते हैं वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट पहले से करते हैं, ऑब्जर्वेशन बाद में किया गया, इसीलिए लॉ अभी बना. एक्चुअली ऑल द लॉज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर, जिसको हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करके उसका लॉ बनाना होता है. सो द रिवीजन ऑफ द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट साइंस. साइंस को हमने बोला था बंडल ऑफ लॉज ऑफ नेचर. उसके बाद में मैंने साइंटिफिक मेथड के बारे में बात किया था. साइंटिफिक मेथड दैट मींस सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच towards the conclusion. After that we have discussed about technology. Technology, that is application of laws of nature. और laws of nature को हमने क्या कहा था? Science कहा था. So that is why technology is what? Application of science. That means in the form of devices. In the form of devices. और या तो फिर for the easiness of humanity, whichever the devices are made, ठीक है ना? वो that might be physical or that might be non-physical. Physical भी हो सकता है, non-physical भी हो सकता है, ठीक है? अब after discussion of this, we have discussed about branches of science, और उसमें हमने physics लिया था. Physics का मतलब ही होता है to know nature, to know the nature. यानी कि physics is a branch of science which always deals with nature. Is that clear? और इसी की वजह से there are two kinds of thrusts in nature. First one that is unification and second one that is reductionism. ठीक है? Now what was unification? Unification, that means we after identification of a single law, after identification or invention of law, single law, that single law is able to explain another phenomena also. Is that clear? With the help of single law we can explain different phenomena with the help of single law. Example given was Newton's gravitational force, Newton's gravitational law. Okay, पहले तो वो force define करता था. After that we have described that the motion of moon and earth in as the terrestrial object, ठीक है, in space. Okay, that also explained with the help of Newton's gravitational force. After that electromagnetic waves has identified with by the Maxwell. That was consideration of three branches: electric branch, then magnetic branch, and third one that is optics. Because optics के अंदर जितने भी light के बारे में हम पढ़ते हैं वहाँ पे बोला गया है कि light is electromagnetic wave. So that is considered as unification. While in the case of reductionism, reductionism क्या होता है? If we are not able to explain the large scale phenomena or the complex phenomena with the first branch of physics, then using the second branch of physics
we can give the definition or we can explain the phenomena of the first branch. ठीक है ना, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एटॉम्स के बिना टेम्परेचर को डिफाइन नहीं किया गया, एटॉम्स के बिना टेम्परेचर को डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि टेम्परेचर जो है वो सिर्फ मेजर किया जाता है। तो उसी की वजह से एक रिडक्शनिज्म की एक ब्रांच जो निकली उसको हमने बोला था मैक्रोफिजिक्स, उसको हमने बोला था मैक्रोफिजिक्स। एंड दैट सेकंड वन दैट इज माइक्रोफिजिक्स। अब मैक्रोफिजिक्स के अंदर टेम्परेचर इज नॉट डिफाइंड बट टेम्परेचर इज मेजर्ड ओनली, ठीक है, वी कैन गेट दी temperature in Celsius, Fahrenheit, etc. In the case of microphysics, microphysics में क्या होता है, temperature is equal to average kinetic energy of molecules. Molecules की average kinetic energy है, तो यहाँ पे molecules की बात की गई, मतलब कि छोटे छोटे एटॉम्स की बात आई, छोटे छोटे एटॉम्स की वजह से वो डिवाइड हो गए माइक्रो के अंदर। सो यहाँ पे हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर जो है वो मैक्रो में डिफाइन नहीं किया गया लेकिन माइक्रो में डिफाइन किया गया, मतलब first branch is relating with the second and second one is relating with the first one. That means complex phenomena of temperature is explained with the another branch of the physics without changing the meaning of physical quantity or the physical law. So that is considered as reductionism. और उसी की वजह से हमने देखा था कि मैक्रोफिजिक्स जो है वो किसके अंदर डिवाइड होता है, that is classical physics के अंदर जाता है, that divides in classical physics। और ये जो जाता है छोटे molecules की वजह से that goes in quantum physics, किसके अंदर जाता है, quantum physics। So this was the revision of previous lecture. Now we are starting today's lecture. Revision was important just because पिछला lecture जो था वो बहुत boring था, पिछला लेक्चर था, मे भी हो सकता है बहुत बोरिंग हो, जस्ट बिकॉज पूरा थियोरेटिकल था, पूरा का पूरा थियोरेटिकल था। मैंने एकदम शॉर्ट के अंदर उसको खत्म कर दिया विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो यू कैन सी कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद रखना है, इसके अंदर से कुछ ज्यादा बहुत आने वाला नहीं है, दैट इज माय गारंटी। सो वी आर स्टार्टिंग विद द स्कोप। So we are starting with the scope and excitements of physics. So physics जो है basically on the basis of observation, on the basis of observation. Physics is divided into 3 parts, लेकिन हमें तो कितने पढ़ने हैं, सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, ठीक है। Physics is divided into 3 parts. First one that is macroscopic physics, second one that is microscopic physics, और ये दोनों के ऑब्जर्वेशन के बीच में एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टार्ट हुई है, दैट इज मेसोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट ब्रांच, वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट ब्रांच दैट इज मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। What is macroscopic physics? There is an observation taken in laboratories, larger scale than the atoms. Observations, यहाँ पे observations होंगे हमारे पास, observations जो होंगे वो larger है, observations made in macro physics are larger than atomic science,
are of terrestrial objects and observations made in लैबोरेटरी के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं ना, जैसे कि ये लार्जर स्केल के बारे में है, तो वी कैन से दैट कि यहां पे क्लासिकल फिजिक्स जो होगा अपना, क्लासिकल फिजिक्स इज कंसिडर्ड इन मैक्रोफिजिक्स। मैक्रोफिजिक्स के अंदर क्लासिकल फिजिक्स को कंसीडर किया जाता है। सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल फिजिक्स, आपको ये चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू मेनली 4 पार्ट्स। क्लासिकल बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन मेनली इन द 4 ब्रांच। फर्स्ट वन दैट इज, you can see that first one that is mechanics. First one that is mechanics. Second one that is electromagnetism. Third one that is optics, and fourth one that is thermodynamic. 11th के अंदर मैकेनिक्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th में आएगा। नाउ इन द केस ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर हम किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं? सो बेसिकली मैकेनिक्स फर्स्टली फाउंडेड बाय, और कहां से शुरू होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से शुरू होता है। मैकेनिक्स जो होता है कौन से लॉ से अच्छे से एस्टैब्लिश किया गया है? तो इट इज हैविंग एग्जांपल ऑफ दिस वन दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें कौन कौन सी चीज कंसीडर होती है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद मैकेनिक्स के अंदर ही होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब बियॉन्सी फोर्स एंड एक्सेट्रा, जो कुछ भी आप पढ़े हुए हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर, वो सब किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो बेसिकली while there is talk of velocity, acceleration, forces on object, ठीक है, फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि F इज इक्वल टू ma जो है, ठीक है, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या तो फिर फोर्स F दैट इज इक्वल टू g इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सारी चीजें मैकेनिक्स के अंदर कवर की जाएगी। टॉर्क जो होगा वो भी मैकेनिक्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। बहुत सारी चीजें जो आएगी वो मैकेनिक्स के अंदर कंसीडर की जाएगी। नाउ सेकंड ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्ज होता है आपका, चार्ज इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी, नो वेलोसिटी। चार्ज के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती है, इसका मतलब चार्ज जो है वो स्टेडी होगा। चार्ज इज व्हाट? स्टेडी पोजीशन के अंदर होगा, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। उसके बाद चार्ज जो है उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो वो कंसीडर किया जाएगा मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद जनरेशन होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल की थियरी जो है वहां पे क्या होगा? चार्ज इज एक्सेलरेटेड, वहां पे क्या होगा? चार्ज इज
एक्सेलरेटेड, यानी कि चार्ज के पास जो वेलोसिटी है दैट इज चेंजिंग बाय टाइम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस आर द थ्री फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे हर एक चीज के अंदर जितने भी फोर्स आएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर जितने भी फोर्स आएंगे दैट विल कंसीडर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, व्हाइल चार्जेस आर मूविंग, तब जब चार्ज मूविंग होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों यहां पे होंगे। ठीक है, यानी कि Q इज इक्वल टू ITN एटसेट्रा एटसेट्रा, आप जो पढ़े हुए हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर, दैट विल कम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये अपना स्टैंडर्ड 12th का टॉपिक है। ठीक है, ये ऑप्टिक्स जो है वो भी 12th के अंदर आता है। यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा कि व्हाइल देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऑप्टिक्स जो है ना एक्चुअली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑप्टिक्स जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऑप्टिक्स जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन दैट इज रे ऑप्टिक्स और सेकंड वन दैट इज वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स जो है इट इज हैविंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वो बेस्ड है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, while wave optics है that is wave nature of light। इसी के अंदर बोला गया है कि wave is, इसी के अंदर बोला गया है, मैक्सवेल ने बताया था कि light is electromagnetic wave। ये किसने बताया था? बाय मैक्सवेल। कौन सी थियरी से? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। ठीक है, तो बाय मैक्सवेल थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। और यहां पे पार्टिकल नेचर जो है दैट वाज कंसीडर्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने बताया था, न्यूटन said that light is made up of small particles। ठीक है, तो यहां पे दो पार्ट बन गए। अब रे ऑप्टिक्स जो है उसको दूसरी ब्रांच भी बोला जाता है। रे ऑप्टिक्स को क्या बोला जाता है? रे ऑप्टिक्स को बोला जाता है कि ये जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स है। क्या है? जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। वाई यहां पे जो वेव ऑप्टिक्स है इसको क्या बोला जाता है? वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, सो दैट वाज, बुक के अंदर इतना सारा डिस्क्रिप्शन नहीं है, वी आर गोइंग थ्रू दैट जस्ट बिकॉज दिस इज फिजिकल वर्ल्ड एंड दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर और वी कैन से इंट्रोडक्टरी चैप्टर फॉर होल फिजिक्स। ओके, either that is for 11th or either that is for 12th। so I am considering the full data regarding to all the branches, जिसकी वजह से आपको कहीं पे कंसिडरेशन में दिक्कत ना आए कि सर ये जो वर्ड है ना हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, सो बेसिकली ये सब चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए ना। फोर्थ ब्रांच वी आर कंसिडरिंग दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वहां पे we will talk about the temperature, then pressure, then volume of particles or objects। ठीक है, so that is based on the heat। ये जो चीज कंसीडर करेगी हीट ट्रांसफर दिखाएगी और डिवाइसेस जो है उसके हम सब जानते हैं, एसी, कूलर। ठीक है, एफिशिएंसी, जहां पे भी गर्मी दिखती है वहां हर जगह पे थर्मोडायनेमिक्स आता ही है। ठीक है, उसके बाद हीटर, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो या तो फिर डायरेक्टली एसी हीटर हो, एसी के जैसा ही जो हीटर आता है वो हीटर हो, कोई भी हो, लेकिन दैट इज कंसीडर्ड इन
thermodynamics. So ions, those all things, ठीक है, temperature of body will cover in thermodynamics. So that was basically macrophysics, और macrophysics के अंदर ही क्लासिकल फिजिक्स आता है, ठीक है. अब मैकेनिक्स के जो है ना, मैकेनिक्स में मैं यहाँ पे बोलूंगा मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं. मैकेनिक्स के भी कितने पार्ट बनते हैं? दो पार्ट बनते हैं. फर्स्ट पार्ट दैट इज काइनेमैटिक्स और सेकेंड वन दैट इज काइनेटिक्स, ठीक है. फर्स्ट वन दैट इज काइनेमैटिक्स, सेकेंड वन दैट इज काइनेटिक्स. What is kinematics and what is kinetics? So, if we are considering the velocity only, but reason behind that velocity might be the force. Velocity के पीछे reason क्या रहता है? कोई force रहता है, किसी भी टाइप का force हो, वो चाहे आपने लगाया हुआ हो या तो फिर frictional force हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो, लेकिन वी आर नॉट कंसीडरिंग दी रीजंस कि वेलोसिटी क्यों है, यानी कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी फोर्सेस. अगर हम फोर्सेस के बारे में बात नहीं करते हैं तो दैट विल कंसीडर ओनली वेलोसिटी, नो रीजंस, reasons for velocity will not consider. Only velocity is considered, but reason for velocity will not consider. ठीक है, रीजन नहीं कंसीडर किया जाएगा. While in the case of kinetics, velocity plus reason of velocity, मतलब इसके अंदर फोर्सेस के बारे में बात होगी, इसके अंदर फोर्सेस के बारे में बात नहीं होगी. ओनली सो ये अपना चैप्टर नंबर 3 and 4, काइनेटिक्स जो है चैप्टर नंबर 3 and 4, while in the case of kinematics चैप्टर नंबर 5 and 6, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 and 6 दैट इज ऑफ 11th. सो ये भी आपको जानना जरूरी है. क्लियर है इतना? सो पूरा का पूरा मैक्रोफिजिक्स हमारे सामने है. नाउ दूसरे दो चार एग्जांपल यहां पे देना मैं भूल गया. फिजिकल क्वांटिटीज लाइक यहां पे लिखा हुआ है एंट्रोपी, एंथैल्पी, ठीक है. ये सब चीजें कहां पे कंसीडर की जाएगी? इन थर्मोडायनेमिक्स, मैक्रोफिजिक्स के अंदर कंसीडर की जाएगी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोफिजिक्स. ये सब चीजें जो है ये आपके दिमाग में डालना जरूरी है. Without the introductions of each and every portion, you cannot start learning. किसी भी चीज को आप सीखना शुरू नहीं कर सकते हैं. So the introduction regarding to these chapters are very most important. ठीक है, आपको इन चीजों के बारे में पढ़ना ही चाहिए, उसी के बाद आगे बढ़ना चाहिए. Now we have finished macroscopic physics. Now there is second type. हम दूसरी टाइप के बारे में बात करेंगे. मेसोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में अभी हमको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है. So that is माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स. माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर ऑब्जर्वेशन किस चीजों के लिए चाहिए? माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा. माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? छोटा होना. तो while we are talking about atoms, atomic size, nucleus, reactions at the responses of the molecules regarding to various physical quantities, so those things will cover in microphysics. That means while there is observation, while
there is observations of atom, molecule, its structure and their behavior, then it will consider in microscopic physics. Okay, and as these are considered with these small atoms, ठीक है, ये जो चीज है atoms and molecules के साथ जुड़ी हुई है, तो basically it is a branch which is used in research and development. कहाँ पे यूज होती है? ज्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है। एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ी हुई है, सो दैट इज व्हाई माइक्रोफिजिक्स leads to new branch of physics said which one? क्वांटम फिजिक्स। किस चीज के डायरेक्शन में हमको लेके गई? क्वांटम फिजिक्स के डायरेक्शन में लेके गई। नाउ दिस इज, ये माइक्रोफिजिक्स ने हमको क्या बताया? वी कैन ऑब्जर्व द स्मॉल थिंग्स। तो मतलब लेबोरेटरीज के अंदर ही ज्यादातर ये चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाएगा ज्यादातर, ठीक है, बिकॉज दैट इज बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक्चुअली। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कि एग्जांपल गिवन के अंदर हम क्या ले सकते हैं कि टेम्परेचर गिवन by microscopic physics is temperature of body is average kinetic energy, average kinetic energy of molecules of बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला जाता है? टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। सो दैट वाज द डेफिनेशन। व्हाइल इन द केस ऑफ मैक्रो वी कैन नॉट give the definition, we can just observe the temperature of any body with the help of thermometer and or any temperature measuring device, with the help of any other temperature measuring device, okay। So with the help of, यहाँ से टॉपिक अपना ये जो मैक्रो वाला है वो खत्म हुआ। Now with the help of macro and micro, with the help of macro and micro, we are going to observe something, physical quantity, जिसके अंदर सबसे पहले मैं टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ लेंथ के बारे में, और उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ मास के बारे में, ठीक है। अगर मैं टाइम के बारे में बात करता हूँ तो माइक्रो के अंदर और मैक्रो के अंदर, माइक्रो जो होगी वो छोटी चीजों को, मतलब सबसे कम टाइमिंग को ऑब्जर्व करेगी, और ऑब्जर्वेबल सबसे छोटा टाइम दैट इज 10⁻22 सेकेंड। व्हाइल इन द केस ऑफ मैक्रो तो वो कौन सी चीज मेजर करती है? 10⁻18 सेकेंड तक मेजर करती है। सो रेंज ऑफ टाइम क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ टाइम क्या हो जाएगी? 10⁻18 divided by 10⁻22, 10⁻8 plus 22, 10⁻40 सेकेंड की रेंज हो गई। मतलब सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, तो रेंज हो गई 10⁻40 सेकेंड, ठीक है। वैसे ही इन द केस ऑफ लेंथ, इन द केस ऑफ लेंथ 10⁻⁻⁴
14 मीटर, दिस इज ऑब्जर्व्ड लेंथ, ठीक है। ये जो लेंथ है दैट इज लेंथ वेरी लेंथ measured of molecular nucleus, ये किसका है, न्यूक्लियस का है। और लेंथ मेजर्ड ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दैट इज 10⁻26 meter, 10⁻26 meter of observable universe. This is of observable universe. ये रहा न्यूक्लियस। तो अगर हम रेंज की बात करें तो व्हाट विल बी द रेंज, 10⁻26 मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻14 मीटर, आंसर विल बी 10⁻26 plus 14 equal to 10⁻40 meter, that is our range. So last one, mass, सबसे छोटा मास जो है that is 10⁻30, मास जो होगा वो केजी में। This is of electron, this is of electron। और सबसे ज्यादा मास जो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का गेस किया गया है, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास जो है 10⁻55, कितना है, 10⁻55 kg। दिस इज मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अगर तो रेंज क्या हो गई, सबसे बड़ा न्यूमरेटर के अंदर divided by 10⁻33 kg, so answer will be 10⁻55 plus 33 equal to 10⁻88 kg, that sorry here it is 30, here it is 30, so here it will become 85 kg, that is range of mass। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अ टेबल इज मेड, और इसमें से स्कूल की फर्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांस है, स्कूल की फर्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांस है। दिस इज नॉट गोइंग टू आस्क इन योर JEE नीट या गुड सेट, JEE नीट या गुड सेट, तीनों में से एक में भी ये टॉपिक आने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन that might be asked in your term examination, आपकी टर्म एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज इसमें से आ सकती है, ठीक है। नाउ हमने देखा कि रेंज बहुत कम से लेके बहुत ज्यादा तक हो चुकी है, और बहुत बड़ी रेंज में ये चीज मिल रही है हमको, बहुत बड़ी रेंज के अंदर मिल रही है। तो एज range of physics is increased, its application is also increased, application भी increase होगी। So that is why new branch of physics is developing very fast, that is applied physics। ये रेंज बढ़ गई तो एप्लीकेशन भी बढ़ेगी, तो अप्लाइड फिजिक्स का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है। ये सब चीजें किसके अंदर है, स्कोप एंड एक्सपेंस ऑफ फिजिक्स। बुक के अंदर इतना डिटेल में अच्छा इलोबरेट करके नहीं दिया है, हाँ है, लेकिन एक टॉपिक यहाँ पे हुआ तो दूसरा टॉपिक वहां पे, और तीसरा टॉपिक वहां पे, तो मैंने अच्छे से इलोबरेट करके रखा हुआ है इसको। सो आप देखते जाइए, समझते जाइए। तो न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स हैज बीन स्टार्टेड, दैट इज अप्लाइड फिजिक्स।
और ये सब अप्लाइड फिजिक्स जो है दैट इज यूजफुल टू गिव और टू इंप्रूव the comfort of people, लोगों की कंफर्ट को इंक्रीज करने के लिए ये अप्लाइड फिजिक्स स्टार्ट हुआ है. So in next topic we can say that there is some relation between science or we can say physics, technology and society. ये सब चीजों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए. तो as we know साइंस जो है what is that is law. साइंस जो है वो लॉ, उसकी मदद से हम क्या डेवलप करते हैं, that we develop, that is technology. That means this is application of science. और इसी चीज की वजह से हम डिवाइसेस डेवलप कर सकते हैं. ये जो चीज है that increases the number of devices, ठीक है, number of devices, or we can say provides the service, provides the better services to people. ठीक है. So according to that, these devices and whatever the services has been provided with the help of technology, we can directly relate with the society or we can directly relate with the people. So whichever is right over here, that is to make the easier life or the diverse life to the people. So we can see that there is direct relation between society, technology and science or we can say physics. Now in this lecture we have seen scope and excitements of the physics. That was very much important to understand. In the next lecture we are going to discuss about the fundamental forces. मैंने 2-3 बार नाम ले लिया है फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर. एक मैंने यहाँ पे नाम लिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट वाज द फर्स्ट लॉ. सेकंड वन दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है. उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. आफ्टर देन दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, फंडामेंटल फोर्सेस एंड सेकंड वन दैट इज कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटीज. ये 2 चीजों को पढ़ के चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस एंड वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन का मतलब होता है उसको बचा के रखना. नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. पहले काफी सारी चीजों को कंजर्व माना जाता था जैसे कि मास, लेकिन अभी मास को कंजर्व नहीं माना जाता है. क्यों नहीं माना जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन. तो वो सारी चीजों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. टिल नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट साइंस, साइंटिफिक मेथड, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, उसके बाद प्रिंसिपल थ्रस्ट दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, इट्स डेफिनेशन and its examples. After that we have started the scope of the excitements of the physics. और स्कोप के अंदर सबसे पहले तीन ब्रांचेस में डिवाइड होता है, माइक्रो, मैक्रो एंड मेसो. माइक्रो के अंदर ये रहा आपका माइक्रो. मैक्रो के अंदर हमने देखा कि मैक्रो जो है वो काइनेमेटिक्स, क्लासिकल फिजिक्स को लेके जाती है. क्लासिकल फिजिक्स के टोटल 4 पार्ट को डिवाइड किया. सबसे पहले मैकेनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके बाद ऑप्टिक्स, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स. चारों चीजों को पढ़ाया. उसके बाद हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू द रिडक्शनिज्म मैक्रोफिजिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द माइक्रोफिजिक्स, और उसी के हिसाब से टेंपरेचर की डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं. तो दैट वाज द रिडक्शनिज्म. और रिडक्शनिज्म के हिसाब से ही माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो तीनों को डिवाइड किया गया है. नाउ इन द केस ऑफ माइक्रो जो है छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए यूज की जाती है. छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स डिफाइन की गई है, जो उसकी वजह से क्वांटम फिजिक्स जो है वो आगे बढ़ा.
क्वांटम फिजिक्स आगे बढ़ने की वजह से, माइक्रो मैक्रो की वजह से, माइक्रो एंड मैक्रो की वजह से क्वांटम फिजिक्स के अंदर रेंज टोटल बढ़ गई। तो छोटी चीजों को मैक्रो से हमने मेजर किया और बड़ी चीजों को हमने मैक्रो से मेजर किया। ये दोनों की वजह से रेंज बढ़ गई तो अप्लाइड फिजिक्स जो है उसकी रेंज बढ़ गई और न्यू ब्रांच जो है वो शुरू हो गई, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होने स्टार्ट हो गए। दैट मींस ये सारी चीजों की वजह से साइंस हमको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा डाइवर्सिटी हमको देगा और हमारी लाइफ को इजी बनाने की ट्राई करेगा। ठीक है, एज वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस भी है, लेकिन वी आर नॉट फोकसिंग द लिमिटेशंस ऑन दैट राइट नाउ। लिमिटेशंस जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर हमको काफी सारी चीजों के बीच में आती है, लेकिन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमारी लाइफ इजी कैसे होती है। ठीक है, सो दैट वाज द lecture up to here. In the next lecture we will discuss about fundamental forces, 4 fundamental forces and conservations of physical quantity, जिसके अंदर mass, energy दोनों के बारे में हम बात करेंगे। So end of the lecture. Thank you. रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए lectures और please do the institution. Thank you.